नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 12 नवंबर को चुनाव, 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजों की घोषणा। गिर सोमनाथ में भूत प्रेत भगाने के चक्कर में मासूम पर तंत्र विद्या, 14 साल के धैर्या की मौत। और वडोदरा की मुद्रा सोसाइटी में लूट का पर्दाफाश, लाखों रुपए लूटने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। भारतीय चुनाव आयोग ने आज पत्रकार परिषद का आयोजन कर हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन गुजरात में विधानसभा चुनाव का ऐलान कुछ और दिन टाल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि पूरे हिमाचल में एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। The Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November, and date of counting 8th December, and the entire process is completed by 10th of December. गुजरात के गिर सोमनाथ जिला में भूत प्रेत की अंधश्रद्धा में 14 साल की बच्ची को तड़पा कर मारने की खबर सामने आने से हड़कंप मच गया है। गुजरात के गिर सोमनाथ के तालाला के धावा गांव में बच्ची की बलि मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। खुद बच्ची के पिता और ताऊजी ने ही अंधश्रद्धा में अंध होकर बच्ची की निर्मम रूप से हत्या कर दी। उसे तड़पा कर मौत के घाट उतारा दिया गया। इस मामले बच्ची के पिता और पिता के बड़े भाई यानी ताऊजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गिर सोमनाथ एसपी ने पत्रकार परिषद का आयोजन कर बताया कि 14 साल की धैर्या को भूत लगा होने की अंधश्रद्धा रखते हुए उसे करीबन 8 दिनों तक खेत में तरह तरह की तांत्रिक विधियां उस पर की गई और उसके बाद तांत्रिक विधियां का इस कदर असर हुआ कि बच्ची की आखिरकार मौत हो गई। इस मामले बच्ची की माता और नाना जी की शिकायत के आधार पर पुलिस की जांच में यह समूचा मामला उजागर हुआ है, जिस पर एसपी मनोहर सिंह जाडेजा ने जानकारी दी। તાલાલાના ધાવા ગામમાં એક ભાવેશભાઈ અકબરી કરીને જે છે એણે પોતાની દીકરીનો બલિ ચડાવ્યો છે, કોઈ તાંત્રિક વિધિ કરાવી છે। ભાવેશ અકબરીની એક જ દીકરી 14 વર્ષની ધૈર્યા જેનું ડેથ થયું છે, એ ધૈર્યા અહીંયા એના મોટા બાપુ એટલે કે દિલીપ સાથે રહે છે। નવરાત્રિમાં અનુષ્ઠાન કરવાના બહાને ભાવેશ સુરતથી અહીંયા આવેલો, પોતાના ખેતરમાં જ પોતાની વાડીમાં એણે માતાજીનું સ્થાપન કરેલું અને ત્યાર પછી દીકરીને 1લી તારીખે સ્કૂલેથી આવ્યા પછી, સ્કૂલનો પ્રોગ્રામ અટેન્ડ કરીને આવ્યા પછી 1લી તારીખે એને અહીંયા બોલાવી ખેતરે એની જે ઓળી માતાજીનું સ્થાપન કર્યું ત્યાં જ, અને ભાવેશને એના પિતાને એવી શંકા હતી કે આ દીકરી જે છે એને ભૂત અથવા કંઈક વળગાડ છે, એટલે એને પહેલાં તો શરૂઆતમાં દીકરીને ટોર્ચર કરી કે ભૂત વળગાડ નીકળી જાય। ત્યાર પછી એણે આ દીકરીના જેટલા કપડાં હતા એના મોટા પપ્પા પાસે રહેતી હતી ત્યાંથી જેટલા કપડાં હતા એ મંગાવી અને એ બધા કપડાં દીકરીની સામે જ સળગાવીને એને એકદમ નજીકમાં ઊભી રાખવામાં આવી અને ત્યાર પછી કેમ કે નજીકમાં ઊભી રાખી 1.5-2 કલાક સુધી ઊભી રહી દીકરી, એટલે એના હાથ અને પગમાં ફોડલા પડી ગયા। ત્યાર પછી પણ એણે આખી રાત એને પૂછપરછ કરી કે તને કયું ભૂત વાગ્યું છે, કયું વળગણ છે, અંધશ્રદ્ધામાં। અને ત્યાર પછી બીજી તારીખથી 2-10 થી તો 7-10 સુધી એણે એના ખેતરમાં જે શેરડીનું ખેતર છે, શેરડીની વચ્ચે દીકરીને ખુરશી સાથે માથાના વાળ સાથે બાંધી અને ત્યાં સતત પૂછપરછ કરી રાખી। એ 7 દિવસ દરમિયાન એને પાણી કે ખાવાનું પણ ન આપ્યું અને 7 તારીખે એને ડાઉટ ગયો કે આ દીકરીનું ડેથ થઈ ગયું છે, કીડા પડી ગયા છે અંદર, એટલે એણે
એક પ્લાસ્ટિકમાં એની ડેડ બોડી વીંટાળી, એના ભાઈની દિલીપને બોલાવી, એની ગાડી મંગાવી, એમાં ડેકીમાં ડેડ બોડી નાખી. ગામમાંથી 7 માણસોને, એમના જે કુટુંબના હતા, એમને એવા બાના હેઠળ બોલાવ્યા કે આ દીકરીને એક પ્રકારની બીમારી થઈ છે, ખૂબ ચેપી બીમારી છે, અને એ ચેપી બીમારીને કારણે એનું ડેથ થઈ ગયું છે, એટલે આપણે સ્મશાન વિધિ તાત્કાલિક કરવી પડશે. અમારી પાસે 7 એવા વિટનેસ છે જેમને સ્મશાનમાં બોલાવવામાં આવ્યા હતા. એમણે ડેડ બોડી, એમાંથી 2 જણાએ ડેડ બોડી જોઈ પણ હતી અને એમણે ક્વેશ્ચન પણ કર્યો હતો. આ સાથે વિટનેસના પુરાવા છે, અને સાથે દીકરી જેની સાથે રહેતી હતી એની મોટી મમ્મીનું પણ સ્ટેટમેન્ટ છે. આ બધાના આધારે અમે 302નો ગુનો દાખલ કરી દિલીપ અને ભાવેશ, દિલીપ મદદગારીમાં અને ભાવેશ મુખ્ય આરોપી, અમે अरेस्ट कर लीधा है। वडोदरा के वासना रोड पर मुद्रा सोसाइटी में लूट की घटना को पुलिस ने सुलझा लिया है और लूट में शामिल आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 8 अक्टूबर को वडोदरा के वासना रोड पर मुद्रा सोसाइटी में A1 नंबर में रहने वाले पटेल परिवार को अज्ञात लुटेरों ने बंदूक की नोक पर घर में बंधक बनाकर लूट लिया था। दीपक पटेल और उनकी पत्नी दिव्या पटेल से मारपीट कर लाखों रुपए के जेवर और 25,000 नगद की लूट चलाकर 3 लुटेरे फरार हो गए थे, जिनकी जांच में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और 4 लोगों को फरार घोषित किया है। पिछली 7 तारीख को गोत्री इलाके में जो मुद्रा सोसाइटी है, वहाँ दीपक जयसिंह भाई पटेल, उसके घर पे उसकी और उसकी औरत को, दोनों को बंधक बना के, उसके हाथ पैर बांध के, मुंह पे पट्टी लगा के, उसके घर में सोने चांदी के गहने और 40,000 रुपया कैश मिला के 16 लाख और 90,000 की जो लूट की थी। तो वो पहले गोत्री पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके बाद में सीनियर ऑफिसर ने ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को दिया था। हमने अलग अलग 6 टीम बनाकर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, CCTV फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो टीम काम पे लगाई थी, वो कल हमको इसमें सफलता मिली है। कुल 6 एक्यूज को हमने उसमें पकड़े हैं और पता चला है कि एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, तो हमने IPC 120B की सेक्शन भी लगाई है और 5 एक्यूज पकड़ने के बाकी है। जो पकड़े गए हैं एक्यूज, उसमें अनिल कल्लूभाई कनौजिया, दूसरा अंकित पटेल, तीसरा विक्की उर्फे विक्की सुकुमार घोष, उपेंद्र गोहिल, हेमंत जाडेजा और रविंद्र रावल, जो 6 एक्यूज है वो पकड़े गए हैं। बाकी के जो 5 एक्यूज पकड़ने के बाकी है, उसमें देवल प्रजापति, बिट्टू पटेल, योगेश सिन्हा, हीरालाल मुंगावत और एक जुवेनाइल जो है माइनर बॉय है, उसका नाम हम नहीं ले सकते, और 5 पकड़ने के बाकी है। और बाकी के जो इन्वेस्टिगेशन है, हमारे जो पीयूष देसाई इंस्पेक्टर है वो कर रहे हैं। जो एक्यूज जो जिसका एक्टिव रोल है, उसकी कल TI परेड भी हम करने जा रहे हैं और बाकी के जो एक्यूज है उसका कल हम फर्दर रिमांड भी लेंगे। दिवाली यानी घर सजाने का और घर के आंगन में दिए जलाने का त्योहार। 2 साल बाद अब जब महामारी से देश उभर चुका है, तब छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले लोग तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। 2 साल दिवाली फीकी ही रही, लेकिन अब महामारी को हमने पीछे छोड़ दिया है और दिवाली का उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। दिवाली की तैयारियों में हर कोई जुटा हुआ है और इसी बीच वडोदरा में दिवाली के बाजार भी सज गए हैं। वडोदरा के सिटी इलाके में तरह तरह के सुंदर रंग बिरंगी तोरण लटकन बिक रहे हैं। शहर के नवा बाजार में नवरात्रि के बाद अब दिवाली की वस्तुओं की बिक्री लाल, हरे, पीले मोतियों के, रेशम के, ऊन के और तरह तरह के लटकन दिख रहे हैं, जिनकी कीमत 20 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक है। 2 साल से लोगों ने भी दिवाली की वस्तुओं की खरीदारी नहीं की है। ऐसे में इन बाजारों में खरीदारी का उत्साह देखने मिल रहा है। दिवाली में ऐसा है कि तोरण की वैरायटी बहुत निकले इसमें अहमदाबाद का आता है, सूरत का आता है, दिल्ली का आता है, बॉम्बे का आता है। नहीं, वैरायटी बहुत सारी है। नहीं, ये 2 साल के अंदर कोरोना में मारा मारी थी, इसके लिए पब्लिक का भी घसारा बहुत अच्छा है। व्यापारी लाइन में धंधे भी अच्छे हैं। जो को भी मैं तो बोलता हूँ मोघवाड़ी इतनी है, पर मोघवाड़ी के दृष्टि से धंधा भी अच्छा है। हमारे पास ये 2 साइड, दरवाजे के साइड के मिलते हैं, बीच के मिलते हैं, साइड में मिलते हैं, फूल की दृष्टि में मिलते हैं, दिवाली के आसोपालक के दृष्टि में मिलते हैं, प्लास्टिक में, वो सब वेरायटी अलग अलग होती है। આ દિવાળીની ખરીદી કરવા નીકળ્યા. કોરોના હતા 2-3 વર્ષથી, હવે કોરોના નથી, અત્યારે દિવાળી નવી નવી બધા નીકળ્યા છે તો લેવા ખરીદી કરવા નીકળ્યા છે.
मिट्टी के दियों के बिना दिवाली हमेशा अधूरी है। घर के आंगन में, दरवाजे पर, बालकनी में और हर जगह दिवाली में दिए जलाना एक परंपरा है और इसी परंपरा के तहत खूबसूरत रंग बिरंगी मिट्टी के दिए बनाकर तैयार हो रहे हैं। मिट्टी के लाल दियों के साथ साथ रंग बिरंगी कलरफुल दिए भी बाजार में खूब बिक रहे हैं। बेहद खूबसूरत रंगों के साथ इन दियों को सजाया गया है। वडोदरा में कई कुम्हार परिवार इन दिनों दिन रात अलग अलग डिजाइन के दिए बनाने में जुटे हुए हैं और उन्हीं को रंग रोगान के बाद बाजार में बेचा जा रहा है। तरह तरह के खूबसूरत दिए घर की शोभा बढ़ाने के लिए लोग खुशी खुशी खरीद भी रहे हैं। दीपक में तो हर बार नई नई वैरायटी बनती रहती है। समझो कि पुराने सालों में कि बहुत देसी जो चाक से बनता था, अभी हो गए फैंसेबल यानी डाई से बनना चालू हो गए। उसमें भी कई प्रकार की मतलब में दीपक बना रहे हैं हम। लगभग करीबन 40-50 जात के वो दीपक हमने बना दिए। अभी रिक्वायरमेंट ऐसी भी आ रही है कि मतलब में मीन वाले और वर्क वाले, कॉन वर्क वाले सभी प्रकार के हम दिवाली में दीपक बेचते हैं। और दीपक की महिमा और मिट्टी का दीपक जो बोलते हैं, भले दिवाली किसी के घर में हो पर मिट्टी का दीपक से ही वो चालू करेगा। मिट्टी का दीपक का महत्व ज़्यादा है। VNM टीवी पर आप देख रहे हैं VNM न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए VNM टीवी। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. गुजरात विधानसभा चुनाव में गुजरात का पिछड़ा हुआ शिक्षा स्तर और खस्ताहाल स्कूल बड़ा मुद्दा बन रहे हैं। इसी बीच अमरेली में गुजरात सरकार द्वारा इंग्लिश मीडियम स्मार्ट स्कूल का निर्माण किया गया है। गुजरात का शिक्षा स्तर नीचा होने के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार उछाली जा रही है। इसी के तहत अब गुजरात में भी सरकार द्वारा स्मार्ट स्कूल बनाने की शुरुआत कर दी गई है। पिछले कई वक्त से गुजरात में स्मार्ट स्कूलें तो हैं, लेकिन वो वाकई में उतनी स्मार्ट नहीं है।
लेकिन अब गुजरात के अमरेली में स्मार्ट स्कूल बनाई गई है, जिसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने दौरा किया। गुजरात राज्य की पहली स्मार्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल अमरेली में बनाई गई है। स्मार्ट स्कूल में छात्रों की बेंच पर बैठकर ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री खुद विद्यार्थी भी बने और इस स्कूल के बारे में उन्होंने जानकारी ली। स्मार्ट प्राथमिक स्कूल के डेस्क बोर्ड पर इंग्लिश में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस स्मार्ट स्कूल की तारीफ भी की। देखिए, गुजरात के अहमदाबाद सिटी से बहुत ही दूर एक जिला अमरेली, ये अमरेली के अंतर्गत एक इंग्लिश मीडियम स्कूल और जिसके अंतर्गत हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम भी है। ये बहुत संतुष्टि की बात है गुजरात सरकार की, ये कोई उनका भी गर्व का विषय है। और अमरेली जिला जो एक अहमदाबाद शहर से बहुत ही दूर है, वहाँ का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल और पहले ऐसे एक स्कूल है जो जिसमें स्मार्ट क्लासरूम है। सारे बच्चे भी बहुत ही डिसिप्लिन है। बच्चे को प्रेयर मैंने देखा, बच्चे को जो स्मार्ट क्लास बोर्ड से जैसे उसको गिनती करना सिखाते हैं, ये बहुत ही अच्छा। एंड बच्चेज आर ऑल्सो वेल लर्नड। और इसके देख के मेरा ऐसा लगा, जो दिल्ली एक सरकार है जो हर समय बताते हैं उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा, तो ये नहीं है। इससे भी एक गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट का स्कूल उसने ऐसे दिखाया, ये बहुत ही बेहतर है। वडोदरा के अकोटा में डी-मार्ट निकट दिवाली के मद्देनजर खास शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसका सांसद के हाथों उद्घाटन किया गया। दिवाली का त्योहार नजदीक है और दिवाली में घर सजाने की भारतीय परंपरा है। दिवाली के मद्देनजर वडोदरा के अकोटा में डी-मार्ट निकट दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसका वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। इस शॉपिंग फेस्टिवल में होम डेकोर, तरह तरह के कपड़े, तोरण, लटकन, रंगोली, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसी वस्तुओं के 40 स्टॉल लगाए गए हैं। ये शॉपिंग फेस्टिवल 14, 15 और 16 अक्टूबर को जारी रहेगा। इस दिवाली फेस्टिवल का आयोजन स्वाति ठक्कर और रीमा पाठक द्वारा किया गया है। फर्स्ट टाइम अमे लोकोए एज अ गृहिणी अमे लोकोए पहली वखत एक्जिबिशन लाव्या छे, तो तमने बधाने नम्र विनंती के तमे बधा आवो અને અમારા બધા સ્ટોલર્સને એમની પ્રોડક્ટ પરચેસ કરવામાં મદદ કરો। બધાને મજા આવશે। દિવાળી નજીક છે ને, દિવાળીની બધી પ્રોડક્ટ છે। કઈ કઈ આઇટમો અહીંયા મૂકવામાં આવી છે? અહીંયા દિવાળીને લગતા દીવા છે, ટપરવેરનું છે, રેઝિન આર્ટ છે, ડેકોરેશન થિંગ્સ છે દિવાળીને લગતા, તોરણ, ક્લોથિંગ, જ્વેલરી, પ્લાન્ટ્સ ને બધું પણ છે, હોમ ડેકોરની આઇટમ છે, બધી જ અવેલેબલ છે। સો પ્લીઝ કમ ઓલ। સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં उत्सवनी पण नगरी है आपणी वडोदरा, अने दिवाळीनो त्यौहार आवी रह्यो छे त्यारे वडोदरा डी-मार्टनी पाछळ दिवाળી मेगा एक एक्जिबिशनનું आयोजन रीनाबेन पाठक अने स्वातिबेन ठक्कर द्वारा आज अहींया करवामां आव्युं छे। लगभग 40 थी पण वधारे अहींया जुदी जुदी वस्तुना स्टॉल छे। खूब सारी वेरायटी साथेना स्टॉल है। अने खास आनंदनी बात ए छे कि बधी ज बहनों पोते स्वसहाय ग्रुप एटले के पोते बनावेली वस्तु, पोते जे प्रोडक्ट ने पोताना घरे वेचता होय, पोते कंईक ने कंईक काम करता होय अने पोते पगभर रहता होय, एवी बहनों ने अहींया स्टॉल आपवानुं काम आ बंने बहनोए रीना अने स्वातिए कर्युं छे। आपना माध्यमथी मारी वडोदरानी बहनों ने विनंती करूँ छूँ, आओ वडोदरा डी-मार्टनी पाछळ आपणामांनी ज कोईक बहन पोते पोताना द्वारा बनावेली वस्तु जे आपणे दिवाळीमां अने आपणा रोजिंदा जीवनमां उपयोगी थाय एवी प्रोडक्ट अहींया आपणी बहनों लईने बैठी छे। आपणने रोजे जरूर पड़े ज छे। आवो ने आपणे थोड़ो समय काढीने आ बहनों ने पण प्रोत्साहन आपीए अने साथे साथे आपणी जरूरियातनी प्रोडक्ट अहींयाथी खरीदीने जे बहनों पोते स्वसहाय जूथ द्वारा पोते प्रोडक्ट द्वारा पोते कंईक ने कंईक पोताना जीवन में आगळ वधवा जई रही है,
તો એ બહેનોને પણ હેલ્પ કરીએ એવી આપ સૌને મારી વિનંતી। वडोदरा के नवलखी मैदान में प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में BAPS संस्था के विद्वान वक्ता डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी का संबोधन आयोजित किया गया। देश विदेश में करोड़ों समर्थक वाली BAPS संस्था द्वारा इन दिनों प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी का महोत्सव पूरे साल मनाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न आयोजन भी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन वडोदरा के नवलखी मैदान में हुआ, जहां हजारों हरिभक्तों की उपस्थिति में स्वामीनारायण संत और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर ज्ञानवत्सल स्वामी ने सभी को अपने आशीर्वचन का लाभ दिया। एज्युकेशन વધ્યું પણ સંસ્કારો ઘટતા જાય છે એ વાત આપણને નજરે દેખાય છે। શિક્ષણ ખૂબ અગત્યનું છે પણ સંસ્કાર એથી વધારે અગત્યના છે। શિક્ષણ અગત્યનું છે પણ સંસ્કાર એથી અગત્યના છે, કારણ કે હું તમને લોજિકથી તર્કથી સમજાવું કે શિક્ષણ અગત્યનું છે પણ સંસ્કાર કેમ વધારે અગત્યના છે। કે અત્યારે જે બોમ્બ્સ અને મિસાઇલ્સ અને વેપન્સ ઓફ માસ ડિસ્ટ્રક્શન બનાવે છે, ન્યુક્લિયર વેપન્સ બનાવે છે, અભણ લોકો નથી બનાવતા, ખૂબ ભણેલા લોકો આ બનાવે છે। એ બધા સાયન્સ ગ્રેજ્યુએટ્સ છે, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ્સ છે, some of them are doctors from some of the finest universities in the world। એ ભણ્યા પણ એને સંસ્કાર નથી, એટલે માનવ જાતને કેવી રીતે સાફ કરી નાખવી એની માટે પોતાની લેબોરેટરીમાં 12-14 કલાક કામ કરે છે। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में रात्रि आफ्टर नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि महोत्सव 2022 आयोजित किया गया, जिसमें ट्रेडिशनल कपड़ों में सज होकर छात्रों ने गरबा खेलने का आनंद लिया। गुजरात में नवरात्रि के 9 दिनों तक मां अम्बे की आराधना के लिए गरबा खेलने की परंपरा है। नवरात्रि तो पूरी हो गई है, लेकिन आफ्टर नवरात्रि के आयोजन अभी भी गुजरात के वडोदरा शहर में जारी है। ऐसा ही एक आयोजन वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी में किया गया। परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी में नवरात्रि महोत्सव 2022 अंतर्गत मां अम्बे की आराधना में गरबे खेलने का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उपस्थित रहकर माता जी के गरबा खेलने का आनंद लिया। कोरोना के 2 साल बाद शहर में तरह तरह के गरबा आयोजन हो रहे हैं। इसी के तहत MSU की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा भी आयोजन किया गया, जिसका छात्रों ने खूब आनंद उठाया। और स्टूडेंट्स को डांस करने के लिए मौका मिलेगा बाकी के बच्चों को, ऐसा है। सो इसका मोटो
बच्चे हम हैं तो हमको हमेशा नवरात्रि के दौरान सिर्फ गाने का या फिर आर्ट को दर्शाने का मौका मिलता है, पर डांस का मौका नहीं मिलता है। जैसे कि तबला डिपार्टमेंट के हैं या फिर सिंगिंग डिपार्टमेंट के, वोकल डिपार्टमेंट के बच्चों को, तो ये हमें मौका मिलता है कॉलेज में जाके हम हमारे गुजरात संस्कृति के बारे में हम बता भी सकते हैं और सबको डांस करने का मौका मिल सकता है। वडोदरा में बसने वाले उत्तर भारतीय समाज की विवाहिताओं ने उत्साह के साथ करवा चौथ का निर्जल व्रत कर पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भारत के जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्य रूप से मनाया जाता है और अब देश भर में इन राज्यों के लोगों के साथ साथ अन्य राज्यों के लोग भी इसे उत्साह के साथ मना रहे हैं। खासकर इस दिवस पर विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के साथ निर्जल व्रत रखा जाता है। दिन भर बिना खाए पिए व्रत रखने के बाद चांद को देखकर पति की पूजा कर व्रत को खोला जाता है। वडोदरा शहर में भी बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं। उन सभी ने अपनी अपनी छतों पर एकत्रित होकर चांद के साथ साथ चलनी से पति के दीदार करने के बाद पानी पीकर व्रत को खोला। आज करवा चौथ का फास्ट हमने रखा था। सुबह से बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन बिना पानी पिए रहे और शाम को जब रात को चांद निकला तब चांद को पहले चांद की पूजा करके चांद को अर्घ देकर और चलनी में से चांद को देखा। उसके बाद उसी चलनी से अपने पति का चेहरा देख के हमने हमारा व्रत पूरा किया और हमारे पति ने हमको पानी पिलाया। तो आज का दिन हमारे लिए पूरा बहुत महत्व रखता है, जो हम अपने हस्बैंड के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए और हेल्थ के लिए हम ये फास्ट रखते हैं। आज हम जितने भी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे सभी लोग लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ताकि लाल कलर यानी सुहाग का कलर होता है। सो आज सभी सुहागन ने पूरी तरह से सज धज के जैसे शादी के टाइम तैयार होते हैं ऐसे ही तैयार होके उसकी तैयारी करी। शाम को पहले पूजा करके कहानी सुनी और उसके बाद चंद्र देवता का इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार हमारा इंतज़ार पूरा हुआ और चांद निकला। चांद के दर्शन करके हमने हमारा व्रत पूरा किया। करवा चौथ के दिन हम लोग है ना सुबह से सारी जो सुहागन औरतें होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है और ये सुबह से वो लोग है ना बिना खाए पिए इस उपवास को करती है ताकि उनके पति की आयु बहुत लंबी हो और सुहागन औरतों को ये करने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि वो उसे एंजॉय करके ही वो कार्य करती है। ये करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का व्रत उत्तर भारत में पहले से मनाया जाता है और हम लोग भी यहाँ गुजरात में 1904 से बसे हुए हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। उसमें हमारे उत्तर भारत के नहीं, इवन गुजरात के भी हमारे फ्रेंड सर्कल ने ये सब इसमें साथ में जुड़ते हैं और इस पर्व का हम लोग आनंद इसलिए लेते हैं क्योंकि पत्नियां हमारे लिए पूरे दिन निराजल व्रत रखती हैं और शाम को चांद देख के, चांद के साथ हमें देखकर और वो निराजल उनको जल पिलाकर उनका उपवास हम पूरा करवाते हैं और वो हमारे परिवार, हमारे लिए तथा हमारे बच्चों के लिए यह उपवास रखती हैं और यह उपवास रखती हैं, उसका हमें आनंद है। गुजरात के भावनगर के वीआईपी कमर्शियल इलाके से 13 लाख रुपए की चोरी करने वाला चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। भावनगर के कुंभारवाड़ा के वीआईपी इलाके में स्कूटर में रखे हुए 13 लाख रुपए चंद सेकंड में उठाकर एक शख्स अपनी गाड़ी पर चलता बना। चोरी करने वाला ये शख्स सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। जो अपने स्कूटर पर आता है और उसे पैसों के बारे में पहले से ही जानकारी हो, ऐसे बैग उठाकर स्कूटर लेकर निकल जाता है। इस घटना की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है। नवसारी से 1 महीना और 13 दिन पहले लापता हुई 10 साल की बच्ची को ढूंढने के लिए परिजन दर दर भटक रहे हैं। नवसारी के रामनगर में रहने वाली 10 साल की बच्ची आज से करीब 1.5 महीने पहले नवसारी से गुम हो गई है।
जिसे किसी बच्चा चोर ने उठा लिया होने की आशंका परिजनों को सता रही है। और ऐसे में कई दिनों से बच्ची के परिजन उसे गुजरात के कई शहरों में ढूंढ चुके हैं और पिछले 2 दिनों से वडोदरा की काख छान रहे हैं। इस तस्वीर में दिखने वाली सोनल नामक बच्ची की किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर 9265188719 पर संपर्क करने का अनुरोध किया गया है। અમારી પોરી ખોવાઈ ગયેલી છે। પોરીને હોટા હોટા મેં 2 દિવસથી અહીંયા આવેલા ના આ એની અરજી છે, આ એનો ફોટો છે। હા, ક્યાંથી ખોવાઈ ગઈ છે છોકરી? નવસારીથી। હા, અને કેટલા વર્ષની છે? એ 10 વર્ષની છે પોરી। ના અમે એને હોટા હોતા અમારા પાસે જેટલા પૈસા હતા, પાણી બધું જેટલું હતું તેટલું બધું અમે ડાયરેક્ટ કિમ કડોદરા બધું નવસારીમાં જેટલો ઇલાકો છે અમદાવાદ સુધી પછી કચ્છ ભુજ સુધીને અમે જઈને આવ્યા। અમે નથી જોયું એવું ગામ અમે ફર્યા। અમારા પાસે પૈસા પાણી કંઈ નથી ને અમારી પોરી ખોવાઈ ગયેલી છે। આજે કેટલા દિવસથી અમે કંઈ ખાધું પીધું કંઈ નથી। નવસારીમાં તમે શું કરો છો? આ રીતે માંગીને જ ખાઓ છો? ના, અમે શાકભાજીનો ધંધો કરીએ, પોરીના લીધે અમારા પાસે પૈસા પાણી કંઈ નથી બચ્યું। પણ નવસારીમાંથી છોકરી ખોવાઈ કેવી રીતે ગઈ 10 વર્ષ? અમે બીજા મારા નીચેથી ઘરના નીચેથી ખોવાઈ ગયેલી છે। તમને એમ કેમ લાગે છે કે અહીંયા વડોદરામાં હશે યા અહીંયા શોધી રહ્યા છે? વડોદરામાં સુરતમાંથી એવું કીધું કે એક બૈરી એના હાથના છે તો એ બૈરી લઈને ગયેલી છે। હવે આજે કેટલા દિવસથી અમે 2 દિવસથી ગોઠતા છે। હવે પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી છે? પોલીસ સ્ટેશનમાં કર્યું પણ પોલીસવાળા કંઈ બોલતા નથી ને કંઈ કહેતા બી નથી અમને। એમ કહે કે અમે બી હોટા છે પણ એટલું પોલીસવાળા એ નથી હોય તો તેટલું અમે હોદીને એ થયા। जूनागढ़ के केशोद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की उपस्थिति में रैली निकालकर नागरिकों से वोट अपील की गई। जूनागढ़ के केशोद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद की अगुवाई में रैली का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी लगातार लोगों के बीच जा रही है और भाजपा सरकार की कमियों को उजागर करते हुए इस बार परिवर्तन की अपील कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद और गुजरात के सह-प्रभारी राघव चड्ढा भी इस मौके पर मौजूद रहे। रैली के बाद सभा का भी आयोजन किया गया। आज रोज केशोद मुकामे माननीय राज्यसभा सांसद गुजरात आम आदमी प्रभारी श्री राघव चड्ढाजी केशोद मुकामे कार्यकरो साथे मोटी संख्या में रोड शो करेल। ત્યારબાદ કેશોદના અને માંગરોળ વિસ્તારના સંગઠનના સૌ કાર્યકર્તાઓ સાથે શ્રી લીલકીટ મહાદેવના સાનિધ્યમાં કાર્યકર્તાઓ અને યુવાનોને આમ આદમીનું જોશ અને જનૂન વધારવા માટે આમ સૌ કાર્યકર્તાએ અને મેં આજે રોજ એક સભાનું આયોજન કરેલ। મોટી સંખ્યામાં સૌ કાર્યકર્તાઓ અને યુવાનો આ સભાની અંદર હાજર રહ્યા। બસ એટલું કઈ વિનવું છે। સમજીભાઈ ચડ્ડાજીએ કેવું સભા સપોર્ટ? ચડ્ડાજી ને સમયના અભાવે પોતે રાજ્યસભાના સાંસદ હોય, ગુજરાતના પ્રભારી હોય, માનનીય કેજરીવાલજીનો મેસેજ આવતા પોતાને એમરજન્સીને જવાને કારણે અમારા કાર્યકર્તા વચ્ચે ઉપસ્થિત નથી રહ્યા। वडोदरा के कारेलीबाग के ब्राइट स्कूल प्ले सेंटर में किताबें कुछ कहना चाहती है, हमारे पास रहना चाहती है पर एक खास कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को किताबों की इम्पोर्टेंस समझाई गई। किताबें किसी के भी जीवन में सबसे अच्छा दोस्त साबित हो सकती है। किताबें ज्ञान का ऐसा स्रोत है जो आपको जीवन के हर पड़ाव पर आगे ले जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सफल बनने के लिए किताबें बेहतरीन साथी साबित होती है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को किताबों की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए कारेलीबाग के ब्राइट प्ले सेंटर में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को व्यक्ति के जीवन में किताब की महत्ता समझाई गई। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें। वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम की खबरें देख सकते हैं। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।